Good morning, student. I'm your science teacher, Iftihar. Welcome to all of you in the new session of online classes. Today, we're gonna to discuss about the force and law of motion. What we have already studied it in the previous classes, force and law of motion. In the previous classes, we have studied about the force, its definition, its SI unit, its CGS unit, how many newtons make a force. 1 Newton is equal to how many dyne, and 1 dyne is equal to how much Newton. So we have already discussed about that. So today we are gonna start that the classification. First we have studied about that force. Okay, in the previous class we have already studied that to pull or push anything is called force. To pull or push anything is called force. Its SI unit is Newton. You have already known it. Okay, so 1 Newton is equal to 10 to the power 5 dyne, and 1 dyne is equal to 10 to the power minus 5 Newton. Okay, now we are going to be, if we are talking about the force, so we need to a lot of thing, that is action of force. अगर हम फोर्स के बारे में जान रहे हैं तो हम ये भी जानेंगे कि फोर्स से हम लोग कर क्या क्या सकते हैं, क्या क्या हम लोग कर सकते हैं फोर्स से. ठीक है, तो फोर्स के बारे में जानने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि व्हाट इज द एक्शन, व्हाट आर द एक्शन ऑफ फोर्सेस एंड व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस. Okay, so what we say, action of force, effect of force, and so many things. So today we are going to start it from the effect of force. Effect of force. So my dear student, as we know that by the help of force we can change the state of an object. With the help of force we are able to change the state of an object. It may be rest or rest from motion or motion from rest. Okay, so change the state of an object, maybe rest to motion, okay, or motion to rest. Any problem? No. Second is that by the help of force we can change the speed, change the speed of an object. By the help of force we are able to change the speed of force, either maybe increase or decrease. ठीक है, with the help of force we maybe increase the speed of an object or decrease the speed of an object. ठीक है, ये इंक्रीज और डिक्रीज का एग्जांपल हम लोग कहां से दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल, एक फुटबॉल रखा हुआ है, ठीक है, उस पर किसी ने उसको रोल किया, वो धीरे धीरे रोल होने लगा, हमने उसके ऊपर एक हार्ड किक दिया, ठीक है, द स्पीड ऑफ द फुटबॉल विल इंक्रीज. डिक्रीज का मतलब है कि डिक्रीज का मतलब है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर से नीचे गिर रहा है, हमने उसको पकड़ लिया या उसकी स्पीड को हमने कम कर दिया, तो वी कैन चेंज द स्पीड, इंक्रीज और डिक्रीज. नाउ थर्ड पॉइंट इज दैट बाय द हेल्प ऑफ फोर्स वी कैन चेंज द डायरेक्शन, change the direction.
ठीक है, कैरम देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है। कैरम पे मान लीजिए कि एक कॉइन यहाँ पर ये रखा हुआ है, ये स्ट्राइकर है, हमने इस स्ट्राइकर को स्ट्रेट मारा, ये कॉइन यहाँ से रिटर्न हुआ और उसके बाद ये जो है वो रिटर्न होकर वो यहाँ से यहाँ चला आया। तो इसका मतलब है कि वो डायरेक्शन उसका हम लोगों ने क्या किया, चेंज कर दिया। वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, वी कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हम लोग इसके फोर्स की वजह से हम लोग किसी भी चीज का ऑब्जेक्ट का शेप को भी चेंज कर सकते हैं। शेप ऑफ चेंज का, जैसे कि एक ये वॉल है मेरा, इसको देख लेते हैं हम लोग। ये एक वॉल है, इसके ऊपर एक मेरा नेल है ये, ठीक है। इस नेल को हम लोगों ने हैमर के थ्रू इसको मारना, स्ट्राइक करना शुरू किया अगेन एंड अगेन। सो वी कैन सी दैट द शेप ऑफ the nail is penetrate inside the wooden ball and the shape of the nail will be changed, ठीक है। एक we have a stick, we break down the stick into two equal part, then we can change the shape of object. So this is the effect of force. So now for what we have studied, we have studied about that with the help of force we can change the state of an object. Either if an object lies at rest, we can change its direction from state to motion, means rest to motion. By the applying force we can change a rest object into the motion, and by the motion of object we can change the its state from motion to rest. If a bike is running, then suddenly we are applied a brake is applied, then we will observe that the bike comes into rest. So this is the example of change of state. Now by the help of force we are able to change the speed of an object. Speed of an object means the speed of object can be increased or decreases as per as the requirement. Now the third point is that by the help of force we are able to change the direction of the object. Okay, and last one is by the help of force we are able to change the shape of an object. Okay, my dear student. So now I am giving to you some task at your home. Okay, the task is that give some example, give some example which, okay, verify some example which verify the effect of force. Now we know that force can be mainly divided into two types. अब हम लोग यहाँ पर ये जानेंगे कि फोर्स को हम लोग जो है मेनली दो टाइप्स में बांट सकते हैं. फर्स्ट वन इज बैलेंस्ड फोर्स. फर्स्ट वन इज बैलेंस्ड फोर्स and second one is unbalanced force. Unbalanced force, ठीक है. फोर्स को हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू अपने अनुसार, यानी फोर्स को जो है वो हम लोगों ने जनरली दो पार्ट में बांट दिया है, ठीक है. फर्स्ट वन इज बैलेंस्ड. बैलेंस्ड का मतलब क्या होता है, एक जैसा. और सेकंड है मेरा अनबैलेंस्ड. अनबैलेंस्ड का मतलब क्या होता है, अलग अलग.
ठीक है। बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स को हम लोग समझने के लिए उसको इस तरह से समझ लेते हैं। इसको हम लोग इस तरह से समझ रहे हैं। सपोज कीजिए कि मेरा एक ये बक्सा है, ठीक है, ये एक मेरा एक बॉक्स है जो कि कुछ लोड रखा हुआ है, और ये बॉक्स जो है मेरा वो एक पर्टिकुलर प्लेस पर रखा हुआ है। गॉट इट? नाउ अगर हम लोग यहां पर इसको ऑब्जर्व ऐसे करेंगे, ठीक है, सपोज कीजिए कि इस पर एक लड़का, ये है, ये इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है F1, ठीक है, किस डायरेक्शन में लगा रहा है? इस डायरेक्शन में, ठीक है। वहीं मेरा एक दूसरा लड़का है जो कि दूसरे फोर्स को लगा रहा है, ठीक है, वो फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में। F2 किधर लगा रहा है? F1 के डायरेक्शन में। F1 फोर्स किधर लगा रहा है? F2 के डायरेक्शन में। F2 फोर्स किधर लगा रहा है? F1 के डायरेक्शन में। अब हम लोग मान लेते हैं कि F1 जो फोर्स है वो है 5 न्यूटन, और F2 भी जो फोर्स लगा रहा है वो भी लगा रहा है 5 न्यूटन। बट हम लोग ये देख रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। तो अगर एक फोर्स जो है वो 5 न्यूटन होगा तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया? एक माइनस साइन दे दिया। तो यहाँ पर इस फोर्स का मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये इसको इधर धक्का दे रहा है, और ये ऑब्जेक्ट इसको ये इधर धक्का दे रहा है। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि F1 जो है वो इज इक्वल टू हो जा रहा है मेरा F2 के बराबर, है ना। डायरेक्शन दोनों का क्या है? यहाँ पे डायरेक्शन जो दोनों के लिए वो अपोजिट है। इसका मतलब है इन दोनों के बीच का जो नेट फोर्स होगा F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो देख लीजिए। F1 का वैल्यू हो गया मेरा 5 न्यूटन, ये प्लस हो गया, और F2 मेरा अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग 5 न्यूटन माइनस कर देंगे। तो जब दोनों को सॉल्व करेंगे बेटा तो मेरे पास 0 न्यूटन आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ टू अपोजिट फोर्सेस आर इक्वल देन द फोर्स इज सेड टू बी बैलेंस्ड फोर्स। ओके, सो कैन यू हैव a word that is what is balanced force? So we can define it. What is balanced force? Balanced force. Balanced force हम लोग कब कहेंगे? तो बैलेंस्ड फोर्स हम लोग उसको कह सकते हैं कि a force is said to be balanced. Force is said to be balanced if the magnitude of two opposite forces are equal. Okay, if the magnitude of two opposite forces are equal, then it is said to be balanced. It means F1 is equal to F2, or F1 plus F2 is equal to 0. If the resultant of two opposite forces is 0, then it is also said to be balanced force, or if the magnitude of two opposite forces are equal, then it is said to be balanced force. Now, what is unbalanced force? So, to understand that the unbalanced force, we just try to make it use of this example. So we have a two different force. F1 exerted a force towards the direction of F2, and F2 exerted the force towards the direction of F1. Now we need to slightly change.
Okay, if we change the F1 is 6 Newton and F2 is still 5 Newton. Okay, it means that we are observing that the magnitude of F1 is not equal to the magnitude of F2. It means, my dear student, if F1 applied a force on the object by 6 Newton and F2 has the opposite force of 5 Newton, then we will clearly understand that the F1 dominate the force on the F2 and object displace towards the direction of F2 because F1 has greater magnitude than F2. F1 का जो मैग्नीट्यूड है वो F2 से क्या है, बड़ा है, इसलिए F1 जो है वो उसको धक्का देगा। इसका मतलब है कि अनबैलेंस्ड फोर्स को हम लोग ये बोल सकते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स को हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि फोर्स इज said to be unbalanced if the magnitude of two opposite forces are not common. If the magnitude of two opposite forces are not common or not same, it means F1 is not equal to F2 or either F1 is greater than F2 or F2 is ग्रेटर देन F2 इज ग्रेटर देन F1। इसका मतलब यह है कोई भी एक फोर्स जो है वो अपने वैल्यू को, मैग्नीट्यूड को बड़ा करके रखेगा। तो यहां पर हम लोगों को एक बात, ये ऑब्जर्वेशन ये हुआ कि अगर केस स्टडी अगर हम लोग इसको करें, केस फर्स्ट, तो ऑब्जर्व ये करेंगे कि F1 इज इक्वल टू F2 है, इट मीन्स यहां पर फोर्स जो है वो हमारा बैलेंस है ना। इफ देयर इज अ बैलेंस्ड फोर्स इट मीन्स ऑब्जेक्ट कीप ऑन रेस्ट, ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा रेस्ट पर ही रहेगा, ऑब्जेक्ट में नो मोशन, नो मोशन। क्यों मोशन नहीं होगा? यहां पर ऑब्जेक्ट में मोशन इसलिए नहीं होगा कि जितना फोर्स हम लोग फर्स्ट ऑब्जेक्ट लगा रहा है सेकंड पर, उतना ही सेकंड ऑब्जेक्ट लगा रहा है। इट मींस दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वलाइज हो गया, तो फोर्स का इंपैक्ट हम लोग फील ही नहीं कर पाएंगे। जबकि केस 2 में हम लोग आते हैं तो हम लोगों को यहां पर यह पता, वी विल फाइंड दैट F1 may be greater than F2, okay, or F2 is greater than F1. In that case, object moves toward F2। ठीक है, F1 बड़ा है F2 से, तो F1 फोर्स लगा रहा है, F2 छोटा है, इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट जो है वो F2 की तरफ मूव करेगा। केस 2 में अगर यहां पे हम लोग देखें तो F2 इज ग्रेटर देन F1, इट मींस ऑब्जेक्ट है ना मूव टुवर्ड F1। तो यहां पर हम लोगों ने दो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट फोर्स बैलेंस होगा तो ऑब्जेक्ट में कोई मोशन नहीं होगा, अगर फोर्स अनबैलेंस्ड होगा तो ऑब्जेक्ट में मोशन यहां पर होगा। तो अब हम लोग यहां पर जान लेते हैं कि इंपैक्ट ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स, इम्पैक्ट ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स का क्या इंपैक्ट होगा? मींस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव, जो एक ऑब्जेक्ट स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मतलब रेस्ट ऑब्जेक्ट है वो मूव कर सकता है, क्योंकि अगर एक फोर्स ज्यादा होगा तो दूसरे की तरफ फोर्स करेगा। फॉर एग्जांपल आप ले लें कि एक छोटा बच्चा जो है वो गेट को पुल कर रहा है, दूसरे अपोजिट डायरेक्शन से आप गेट को खींच रहे हैं, अगर आपका फोर्स ज्यादा होगा तो आप बच्चे के साथ उसको खींच लेंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये होता है
कि unbalanced force increase the speed of object, increase or decreases the स्पीड। सपोज कीजिए कि आपका एक फ्रेंड जो है वो बाइसाइकिल चला कर आ रहा है, उसके साइकिल में ब्रेक नहीं है, आप खड़े हो गए उसके सामने, आपने आकर उसके साइकिल को आपने रोक दिया, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, उसके साइकिल के स्पीड को हम लोगों ने डिक्रीज कर दिया। ठीक है, कोई आपका फ्रेंड जो है वो साइकिल चला रहा है स्लोप पे, ये नीचे से ऊपर वो साइकिल जा रहा है लेकर, ये साइकिल को वो लेकर जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पर आपका एक फ्रेंड जो है वो आपको साइकिल को ऊपर से धक्का दे रहा है, तो इसका मतलब है कि ये जो ऊपर जा रहे हैं आप, तो वो साइकिल के स्पीड को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर दे रहा है। थर्ड पॉइंट यहाँ पर ये हो सकता है कि स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट को अगर रोकना है तो बैलेंस फोर्स तो काम करेगा नहीं, क्योंकि बैलेंस फोर्स में तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। यहाँ पर तो वो काम कर नहीं रहा है। अगर उसकी स्पीड बढ़ रही है घट रही है, तो यहाँ पर हम लोग सिंपल ये देख रहे हैं कि अगर स्पीड को हमको बढ़ाना है या घटाना है, या एक ऑब्जेक्ट रुके हुए ऑब्जेक्ट को चलाना है, स्टार्ट रेस्ट ऑब्जेक्ट को मोशन में लाना है, और मोशन ऑब्जेक्ट को, मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट में लाना है, तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पर कुछ काम करना पड़ेगा, जिसके लिए सिर्फ एक ही फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा, जिसका नाम है अनबैलेंस्ड फोर्स। क्लियर है? इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, अनबैलेंस्ड फोर्स जो एक टॉपिक है, इसको हम लोगों को याद रखना है, क्योंकि ये आगे चलकर इस फोर्स के बारे में जो पूरा चैप्टर है वो इसी पर डिपेंड करेगा, अनबैलेंस्ड फोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, so we have already studied that what is the impact of, we have already studied that there are two types of force, unbalanced force and balanced force. In balanced force there is no motion of an object, and in balanced force there is a lot of motion. Okay, if the magnitude of two different forces are not equal, then the object move towards the direction of the force which has a less magnitude. Okay, my dear student, so the what would be the balanced for impact of unbalanced force? So it can change the motion of an object from rest to motion, it can able to speed or increase or decrease the speed of an object, it can change the shape of the object, है ना, it can change the direction of an object, and it can change the size of an object. So I think that you people are get that point, what is the balanced force and what is unbalanced force. Okay, so finally we are going to be studied about that next. Okay, so now onward we are going to study about the laws of motion. Laws of motion, this would be the important part of this chapter. Okay, and it would be a very interesting chapter. Okay, but before I start this, you have to study more on the topic, that is what is balanced force and what is unbalanced force. If you have some problem, then you write the comment and try to share the comment and find out the problem, where did you find the mistake. Okay, so now we are going to be studied about the laws of motion. So we are going to study about that laws of motion. So we have three different laws of motion. So first we are going to study that first law of motion. My dear student, we have already discussed about that the balanced or unbalanced force. In balanced force, object cannot move, object always maintain its state of rest. Okay, but in unbalanced force, object may be change its state from motion, rest to motion, or motion to rest. So finally we can say that our first law of motion is defined as
any stationary body remain at rest, or any moving body, any or any moving body move in a straight line, straight line uniformly. Uniformly means एक जैसा, uniformly means no change, no चेंज। इसका मतलब क्या है कि एक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो वो हमेशा रेस्ट पे ही रहेगा, एक ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो हमेशा मोशन में ही रहेगा, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ही चलता रहेगा, मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्मली until it is compelled by external unbalanced फोर्स। इसका मतलब ये है बेटा कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो रेगुलर मोशन में रहेगा, वो अपने स्टेट को तब तक चेंज नहीं करेगा जब तक ना तो वो उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स काम करे। अगर उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है, फॉर एग्जांपल एक बॉल है, ये हमेशा रोटेट कर रहा है, ये इस फॉर्म पे रोटेट कर रहा है तो ये रोटेट करता ही रहेगा, ये बॉल यहां पर आके रुकेगा कब, जब इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा, है ना। तो फ्रिक्शन फोर्स यहां पर क्या हो गया, अनबैलेंस्ड फोर्स हो गया। ठीक है, आप एक गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, आपका बाइक रेगुलर चलता रहेगा जब तक आप ब्रेक नहीं लगाएं, तो इसका मतलब यह है कि एक ऑब्जेक्ट अपने स्टेट में तब तक चेंजिंग नहीं लाएगा जब तक उसके अंदर किसी तरह का कोई चेंजिंग ना हो। ठीक है, तो हम लोग यहां तक इसको क्लियर कर लेंगे। होमवर्क के लिए आपका जो है कि इसके बीच में जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है पेज नंबर में, उसको आप देख लेंगे, और जो भी प्रॉब्लम होगा उसको हम लोग कर लेंगे। टिल देन कीप योर सेफ, स्टे होम, wear mask, wash your hand frequently. Till then, goodbye. Have a nice day.